Kumar. Today I'm going to teach you about depreciation. Depreciation एक ऐसा concept जिससे हर 11th class का बच्चा ये सोचता है this is one of the difficult chapter. But trust me, I'm going to make it very easy. But yes, you need to give me 2 hours of yours, and I do ensure you take it like this that it becomes so easy for you. So we will basically break this chapter into 4 or 5 lectures. Each lecture will be of 15-20 minutes, and I will in my today's lecture basically I am going to let you know what is depreciation, what are the characteristics of depreciation, what different kind of depreciation for tangible and for intangible there is difference, and then about how it happens and what's the accounting treatment of the same. Depreciation. Depreciation is basically fall in the value of assets. When we use something, the asset value comes down and the value of that asset comes down. There are different reasons, causes of that. So I let you know. Basically, there are 4 causes, and out of these 4 causes, 2 are the major ones. What are those causes? Let me explain it to you. So first of all, what is depreciation in terms of definition? Depreciation is the fall of value of tangible fixed assets. When I say tangible fixed assets, what are tangible fixed assets? Tangible fixed assets are anything which is touchable, which you can see, which you can touch. Those become tangible fixed assets. And depreciation is related to only tangible fixed assets. Okay, so it says fall in the value of tangible fixed assets. And I told you there are 4 reasons behind it. 4 reasons are: 1, uses; 2nd, passage of time; 3rd, obsolescence; and 4th is accident. आउट ऑफ दीज 4, 2 मेजर हैं आपके, एक यूजेस और दूसरा passage of time. Right? Now, these fall in value because of these 4 factors is permanent in nature. It's not that okay, आज मैंने depreciate कर लिया, कल मैंने हटा दिया. No, if something get depreciated, it's going to be depreciated. अगर उसकी fall in value of asset है, तो वो fall in value हो गई. ठीक है. Secondly, 1 I told you permanent. Secondly, it would be gradual. धीरे धीरे होगा, slowly. It's not going to be एकदम हो गया. Third is continuing in nature. It is going to depreciate on a continuous basis. So there are 3 ways. One is it's gradual, second is permanent, third is continue. And now I tell you about the characteristics of depreciation. Let me explain it to you. Just follow that. First of all, it is fall in the book value of the fixed tangible assets. Depreciation itself means something is falling. If the value is this much, it has come down to this much. It means there is a fall in the value. Fall in the value of tangible fixed assets. Book value come down. That is because of the depreciation. So there is a fall in value. Second, fall in the book value is permanent, gradual, and continue nature, which I already explained you here. This is permanent, continue, and gradual. Third, fall in the book value again, uses are passage of time. So आपकी जो वैल्यू डाउन होगी वो मेजरली 2 फैक्टर्स होते हैं उसमें, एक यूजेस, दूसरा passage of time. Right? Now, fall in the book value अगर ग्रेजुअली जो वैल्यू कम होगी बुक वैल्यू वो ग्रेजुअल होगा बिकॉज ऑफ यूजेस, बिकॉज ऑफ passage टाइम. बट अगर ये एकदम हो रहा है देन इट बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस मीन्स कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई. दैट्स वाई obsolescence happens and the fall in value come down drastically, not gradually. Right? Then coming back to depreciation is a non-cash expense debited to P&L account. So it is not a cash expense. I am not incurring some kind of expenditure here in terms of cash payout. I bought the asset at a certain value, gradually it depreciates, so it's a non-cash. It's a non-cash. So it has to, and it is to my P&L account. We have to debit my P&L account because again depreciation is a nominal account. You learned about nominal account, all losses and expenses. So this is an expense hit to my P&L account. Secondly, now the 6th point of is that process of allocation of cost of asset over its expected useful life. So depreciation जो है एक value है asset की. Suppose value is X amount. We have to depreciate it over useful life of assets. As I told you, it's a gradual.
So this is the life of assets, and depreciation of asset will happen over its useful life, right? Coming to the last point, the seventh point of the characteristics. Depreciation is used for tangible fixed assets. मैंने पहले ही बताया था tangible fixed assets. Tangible fixed assets क्या है? जिसको मैं टच कर सकूँ, जिसको मैं देख सकूँ. मेरी क्या हो गया? गाड़ी हो गई. I bought some furniture which are tangibles. But you know what? There is one asset which is not depreciated. Guess what? Guess what? This is land. Exception is land. Why? Because land has infinite economic life. Whenever I have to depreciate, मैं किसी भी चीज़ को depreciate करूँगा, उसकी एक लाइफ होनी चाहिए. मुझे पता होना चाहिए कि इतने सालों में मुझे depreciate करना है, तभी इसका gradual continuous decline होगा. But अगर उसकी लाइफ ही नहीं मालूम मुझे, it's an infinite life, then I can't depreciate. And land is the only exception. Intangible fixed assets, जिसको depreciate नहीं करते आप, क्योंकि उसकी infinite life है, life मुझे मालूम नहीं है. So yes, moving on to the next topic, which is where I'm covering the classification and fall of assets. Now, what I already explained to you about depreciation, which is on tangible assets, 4 factors, 4 reasons of this depreciation: usage, passage of times, obsolescence, and accident. And only one exception in tangible fixed asset where there is no depreciation being charged, जो है आपका लैंड. क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ इन्फिनेट लाइफ है, फिक्स टर्म नहीं है. अगर मैं डेप्रिशिएट तो उसी के ऊपर कर सकता हूँ जिसकी लाइफ फिक्स्ड हो. अगर लाइफ फिक्स नहीं है तो आई कॉन्ट डेप्रिशिएट दैट. सो दैट हैपन्स विद लैंड. नाउ सेकंड कैटेगरी विच इज एमोटाइजेशन. सो एसेट आपके सिर्फ वो नहीं होते जिसको आप टच कर सको फिजिकली. यू कैन सी देयर आर एसेट विच आर विच यू कांट सी, लाइक सॉफ्टवेयर हो गया आपका, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गए. वो आप उसको आप एमोटाइज करेंगे. यू हैव टू एमोटाइज दोस एसेट्स. उसमें क्या है, अगेन वो भी ग्रेजुअल होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, एंड अगेन उन्हें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. वी नो द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ दोज एसेट्स, ऑफ नॉन टेंजिबल एसेट्स. सो दैट इज द सेकंड कैटेगरी विच वी कॉल्ड, बट वी डोंट say depreciation, we call it amortization. Third, in the fall of asset, the third category is depletion. Depletion कैसे हुआ? मैंने कोई कोयले की खदान ले ली, अब मुझे पता है वहाँ पे इतना कोयले का भंडार है, तो जैसे जैसे मैं कोयला निकालता रहूँगा उसमें से वो डेप्रिशिएट होती जाएगी उस खदान की वैल्यू. सो अगेन मैं वही चीज़ आपको उसमें बता रहा हूँ. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम माइन रिसोर्सेज, रिड्यूस अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल. जैसे ही मुझे मालूम है कि इतने मेट्रिक टन है, मैंने इतना वहाँ से टन निकाल दिया, तो मैंने वो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कम हो गई, और वो मेरा क्या होगा, डिप्लीशन. डिप्लीशन मतलब रिसोर्स कम होना, डिप्लीट होना. सो these are the 3 categories. And now, as I already explained you about, so I hope it's pretty clear what are the different classification of the fall of assets. Again मैं आपको बता रहा हूँ. One is depreciation, tangible assets. Amortization, intangible assets. Depletion on which are uses of resources, exhaustion of resources, right? आपको खदान मिली, आपने रिसोर्स यूज किए, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, आपको डेप्रिशिएट करना. और आपको मैंने ये भी बताया था व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन. द फर्स्ट कॉज इज यूजेस विच लीड्स टू वियर एंड टियर. अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ उसको, तो गाड़ी रोड पे चलेगी, वियर एंड टियर होगा, मुझे उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. अगर मैं गाड़ी नहीं भी ले रहा, सिर्फ मेरी खड़ी हुई है, लेकिन पासेज हो रहा है, मॉडल पुराना हो रहा है, तो दैट इज पासेज ऑफ टाइम. सो पासेज ऑफ टाइम मीन्स फिनाइट लाइफ. लाइफ फिक्स है मेरी, 4 साल में डेप्रिशिएट हो जाएगी, गाड़ी का मॉडल पुराना हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. या मैंने लीज एसेट लिए, मैंने अपने यहाँ कोई फोटोकॉपी लिया, कुछ लिया जिसको मैंने 4 साल के लिए लिया, अब मैंने उसे कैपिटलाइज किया है और मुझे उसको डेप्रिशिएट 4 सालों में करना है, तो उसकी फिनाइट लाइफ हो गई, राइट? दैट इज अगेन लिंक टू टाइम. ऑब्सोलेसेंस leads to reduction in useful life. Okay, like any technological improvement. Apple आप एक फ़ोन लेते हो, Apple 6 लिया, Apple 10 आ गया, तो Apple 6 की वैल्यू गिर गई. गिर क्यों गई? Because there is technological enhancement, so it become obsolete, right? Now coming to the fourth, accident. Accident is also permanent, but it's not gradual in nature. अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वैल्यू खत्म, तो परमानेंट खत्म हो गई, यानी कि वो वापस आ जाएगी वैल्यू. बट ये ग्रेजुअल नहीं हुआ. दिस इज नॉट हैपन विद पासेज ऑफ टाइम और विद द यूजेस. सो दिस इज नॉट ग्रेजुअल. द ओनली डिफरेंस हियर, राइट गाइस? सो इज दिस क्लियर? नाउ वी मूव टू द अनदर टॉपिक, राइट?
Okay. So now I tell you about the accounting concept of depreciation, how we do the accounting and all that stuff. So first is allocation of depreciable value of fixed assets over its estimated useful life. I told you depreciation what is required. I should be knowing इसकी लाइफ कितनी है, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, उसके हिसाब से मैं डेप्रिशिएट करूंगा इसकी वैल्यू को, राइट। तो वो यही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि इसकी डेप्रिशिएट हम जो करेंगे एसेट की वैल्यू को उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से करेंगे। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, कंपनी में प्रॉफिट हो ना हो, फाइन, कंपनी इट डजेंट मैटर, बट वी हैव टू चार्ज डेप्रिशिएशन. So it is not dependent upon the company's profit or not. Our company is going for any revenue or not. We have to charge depreciation on asset if it is in uses, or if it is there is a foundation of life of an asset, we have to charge depreciation on assets. Third point, sorry. Depreciation is a process of allocation of cost of fixed assets less its salvage value over their estimated useful life and charge debit to P&L accounts. What does it mean? इसका क्या मतलब है? हमने बताया था डेप्रिशिएशन क्या है, इट्स ए प्रोसेस एलोकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट है व्हाटएवर, उसको उसकी यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट करना। और जब हम डेप्रिशिएट करेंगे, अगेन इट्स ए नॉमिनल एक्सपेंस बिकॉज एक्सपेंस अकाउंट, वो कहाँ चार्ज होगा, डेबिट होगा P&L में। सो वही चीज़ हम इसमें बता रहे हैं। अच्छा, डेप्रिशिएट में क्या होता है, हमने एक एसेट ले लिया, अब उसकी एक सैलवेज वैल्यू भी होगी। सैलवेज वैल्यू मतलब भाई जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए तो हम एक उसको कबाड़ी वबाड़ी को बेच सकते हैं किसी को, तो वो उसकी सैलवेज वैल्यू होगी। तो सैलवेज वैल्यू को लेस कर देंगे। सपोज मैंने एक एसेट लिया 500 रुपये में, अब सैलवेज वैल्यू उसकी भाई 4 साल के बाद उसकी लाइफ है और 100 रुपये मुझे मिल जाएंगे उसको बेचने के बाद, तो उसको 400 रुपये को मुझे डेप्रिशिएट करना है 4 सालों में। तो क्या होगा इसमें, डेप्रिशिएट कितनी वैल्यू होगी, 400 रुपये, लाइफ कितनी है, 4 साल। सो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं डेप्रिशिएट चार्ज कर पाऊंगा। और डेप्रिशिएट कहाँ चार्ज होगा, P&L में। P&L में कहाँ होगा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट। नाउ वी शुड बी नोइंग व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। कोई भी हम काम करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं डेप्रिशिएशन क्यों चार्ज करता हूँ, कोई रीज़न तो होना चाहिए, या ऐसे बस मैंने डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, उसका रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू डिटरमाइन द करेक्ट P&L अकाउंट। मैंने कोई एसेट ले लिया अपने यहाँ पे, अब एसेट लिया मेरे बैलेंस शीट में चला गया, अब मैं जब तक उसको चार्ज नहीं करूँगा, मुझे पता है इसकी वैल्यू, मैंने आज जो वैल्यू ली है वो वैल्यू मुझे 4 साल बाद नहीं मिलेगी, तो मुझे उस वैल्यू को कम लाना है। अब मैं जब वैल्यू को कम लाऊंगा, एसेट को डाउन करूंगा, तो कहाँ से करूंगा, P&L से करूंगा। सो P&L से जब तक मैं नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं होगा कि मेरा P&L मुझे करेक्ट पिक्चर क्या दे रहा है। पता चले मैंने मशीनरी खरीद ली, वो 5 लाख की मशीनरी और 5 लाख की रह गई, और इधर से मैं रेवेन्यू कमाया जा रहा हूँ, मशीनरी का कोई एक्सपेंस ही नहीं आया, तो क्या होगा, मेरा इन्फ्लेटेड प्रॉफिट होगा। सो टू गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ माई P&L, I have to charge depreciate, and depreciate charge needs to go to my P&L account, debit to my P&L account. Second, अब दूसरा क्या है, अब मेरे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब मेरी बैलेंस शीट में मैंने एसेट लिया, कोई एसेट की वैल्यू ली, उसकी जो भी हिस्टोरिकल वैल्यू थी, कॉस्ट वैल्यू थी, मैंने उसमें ले ली। अब लेकिन अगर मैंने ओवर ए पीरियड टाइम उसकी वैल्यू तो डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वैल्यू इज कमिंग डाउन। अब वैल्यू अगर कमिंग डाउन है और मैंने बैलेंस शीट में उतनी वैल्यू दिखाई हुई है, तो इसका मतलब आई एम नॉट गिविंग द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उस एसेट की या फिक्स एसेट की ट्रू एंड फेयर वैल्यू देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एसेट वैल्यू को ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा। ब्रिंग डाउन कैसे, मैंने डेप्रिशिएट किया, तो अगर मेरी 500 रुपये की वैल्यू थी, 100 रुपये डेप्रिशिएट तो मुझे 400 रुपये दिखाना पड़ेगा, सो दैट आई कैन गेट ए करेक्ट ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट। सो टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ मेरे मटेरियल कॉस्ट नहीं होती, लेबर कॉस्ट नहीं होती, मेरी जो मैंने मशीनरी लिया उसको यूज़ किया है, उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट हुई है। अगर मैं उसको चार्ज ही नहीं करूँगा तो मैं कभी असर्टन नहीं कर पाऊंगा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सो टू गेट द एग्जैक्ट to ascertain the cost of production, I need to charge depreciation, because depreciation again is going to hit my P&L account. So that is one important thing. Fourth point, to provide funds for replacement. हमने पहले याद है आपको बोला था कि depreciation क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश है तो क्या हुआ, एक किस्म से मेरा रिजर्व क्रिएट हो गया। मैं रिजर्व क्रिएट किसके लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरा इतना रिजर्व क्रिएट हो जाए, जब मुझे वो एसेट को रिप्लेस करना पड़ते, आई शुड हैव दैट काइंड ऑफ रिजर्व सिटिंग with me, so that I can easily replace that machinery. So that's why it is required to provide fund for replacement
माई बिजनेस इज इन कंटिन्यूटी। मैं एसेट लूँगा, डेप्रिशिएट होगा, उसकी एसेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, एसेट की यूजेज खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे पास फंड्स होना चाहिए ताकि मैं उसी मशीनरी को दोबारा ले सकूँ और मैं अपना प्रोडक्शन रन करता रहूँ, कोई डिस्ट्रप्शन ना हो मेरे प्रोडक्शन में। नाउ देन to comply with legal provision. Legal provision are basically both kind, Companies Act and Income Tax Act. Companies Act में there are certain depreciation rates, certain way of to calculate the depreciation. Income tax में कुछ अलग होते हैं। तो Companies Act के और Income Tax के provision को maintain कर सकूँ, इसके लिए मेरा depreciation charge करना ज़रूरी है। So ये 5 फैक्टर हैं। Simple, what are the basic objective? 1, determine correct P&L account. Second, true and fair value the financial position, मतलब balance sheet. Third, exact or determine the cost of production. Fourth, funds for replacement. Fifth, legal provisions. Right? Thank you. Now we move to the next. So now coming to the last topic for today on depreciation. See, we have already covered, definition of depreciation, objective of depreciation, depreciation क्यों होता है, 4 रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि what are the basic requirement to calculate depreciation. See, first हमें क्या चाहिए, historical cost of assets, किस cost पे हमने उसको purchase किया, वो मेरी historical cost है, उसमें क्या क्या include होना चाहिए, उसमें मेरा purchase price, second freight, थर्ड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मैंने एक मशीन परचेज की, जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, मशीन परचेज की, आई गोन टू द टू बाय द मशीन, आई पेटेड अमाउंट, उसके बाद मैंने वो अपनी फैक्ट्री तक लेके आया, वो मेरा फ्रेट कॉस्ट लग गया। उसके बाद मैंने एक वहाँ से इंजीनियर या टेक्नीशियन आया, उसने मशीन को इंस्टॉल किया, सो वो मेरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया। सो ये सब चीज़ें मुझे उसमें ऐड करनी पड़ेंगी टू गेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो बेसिकली until unless I something put to use for production purpose, all costs incurred to make it put to use needs to be captured and should be part of historical cost. Got it? वो एक चीज चाहिए मुझे। सेकेंडली क्या चाहिए, अच्छा इसमें क्या चीज नहीं आनी चाहिए, जीएसटी मुझे ऐड नहीं करना इसमें, जीएसटी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट। अगर मैंने कोई लोन लिया है उसमें मैंने इंटरेस्ट पे किया है कुछ, वो मैं ऐड नहीं करूंगा, इंटरेस्ट वुड नॉट बी एडेड। सेकेंडली मैंने कोई रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी मैं ऐड नहीं करूँगा इसमें। सिंपल रूटीन मेरा मंथ ऑन मंथ या इफ आई एम स्पेंडिंग सम मनी ऑन माय रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन माय हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो पहले मेरा एक हिस्टोरिकल कॉस्ट आ गया। सेकंड, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मीन्स मैंने यहाँ पे एसेट को कैपिटलाइज कर दिया, एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट ले ली, सपोज करें 1 लाख रुपए। अब मुझे पता है कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, वो रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू मिलेगी मुझे 20,000 रुपये, तो मुझे वो पता होनी चाहिए। थर्ड, मेरी यूजफुल लाइफ, कि वो एसेट की यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 4 साल, 5 साल, 3 साल, राइट। देन मैं उसमें कैलकुलेट कैसे करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा अपना डेप्रिसिएशन। सी हाउ दिस हेल्प मी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। माय हिस्टोरिकल कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज सपोज, देन माय एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू इज 20,000, तो मेरा पूरे मुझे 80,000 को डेप्रिशिएट करना है। 1 लाख मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, 20,000 मेरी रेजिडुअल वैल्यू है, 80,000 की डेप्रिशिएट होगी वैल्यू, क्योंकि 20,000 तो मुझे मिल जाएगा जब मैं वो लाइफ खत्म हो जाएगी उसकी, लेकिन मुझे वो डेप्रिशिएट करना है कितने सालों में। सपोज करो मेरी इकोनॉमिक लाइफ है 4 साल, तो 80,000 वैल्यू नीड्स टू बी डेप्रिशिएटेड इन 4 years. Clear? So that's why these 3 things would be required to calculate depreciation: historical cost, estimate residual value, and economic life. Now coming back to मुझे लेकिन उसकी परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करना चाहिए, वो सब डिपिक्टेड होगा, वो सब मिलेगा आपको लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजन 2 तरह के, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। वो क्या देते हैं आपको, दे प्रिस्क्राइब द मेथड एंड परसेंटेज ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, राइट। मेथड प्रिस्क्राइब करते हैं वो लोग, मेथड में आपको बाद में सेकंड लेक्चर में आपको बताऊंगा, और आपको बेसिकली बताएंगे किस क्या रेट लेना चाहिए डेप्रिशिएट करने के लिए। सो ये 3 चीजें मुझे चाहिए, और उसके बाद लीगल प्रोविजन चाहिए, वो मुझे बताएगा क्या मेथड यूज करना है। तो 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट माई डेप्रिशिएशन। नाउ द लास्ट थिंग फॉर टुडेज, बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या मतलब है बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू का, मैंने यहाँ बताया आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू वो है जो इट इज दैट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट
which has yet not been written off, which has yet not been depreciated. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. मैंने 1 लाख का एसेट लिया, मेरी बुक वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन, राइट. कॉस्ट मैंने 1 लाख का लिया, फर्स्ट ईयर मेरा खत्म हुआ, मैंने सपोज कीजिए 20,000 रुपये डेप्रिशिएट कर दिया, तो मेरी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या थी, 1 लाख रुपये. डेप्रिशिएशन क्या है, 20,000 रुपये, और बुक वैल्यू क्या निकली, 80,000 रुपीज. क्लियर. सो बुक वैल्यू इज cost, historical cost minus depreciation. Whatever the figure comes, it gives us book value. Clear. So today's lecture about depreciation complete. I would try to cover in the next 3 lectures all depreciation chapter. I hope you enjoyed this. I do ensure to make it very simple and should not be complicated. You enjoy this thing, but I need your comments, I need your liking and disliking. So please subscribe my channel, and there will be a bell, you have to do that. Thank you so much, and see you again. Till then, bye, take care.